سر بیٹھ گیا، کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھو تم ابھی، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ بیٹھو تم، بیٹھو، یہ کیا فلانے کی محفل ہے؟ مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں، تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں، آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مذہب اسلام ایک حسین و جمیل خوبصورت مذہب، اس مذہب میں بڑا اچھا اہتمام کیا گیا ہے، گاہے بگاہے واعظ کا، نصیحت کا، جمعہ کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، نکاح کا خطبہ اور سیرت کے جلسوں کا خطبہ۔ سرکار دو جہاں کی زندگی کا مطالعہ کرے بندہ، تب اسے پتہ چلے گا کہ نبی محترم کا کھانا، نبی محترم کا پینا، نبی محترم کا ہجرت کرنا، نبی محترم کا اپنے نواسوں کو پیار دینا، نبی محترم کا اپنے نواسوں کو گردن پہ اٹھانا، اس کے لیے سجدہ دراز کر دینا، ان کی ہونٹ کو چوسنا، ان کو حالت خطبہ میں لے کر گود میں لے کر خطبہ پڑھنا، یہ اس کی حکمتیں کیا تھی تب سمجھ میں آئیں گی۔ جب حکمت کا پہلو دماغ سے اوجھل رہے گا تو کافر کبھی بھی کنفیوژن میں ڈال دے گا، وہ کنفیوژن میں ڈال کے آپ کے ایمان کو خراب کرنا چاہے گا۔ اتنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے طریقے پہ غور کرے۔ وہ جب وہ چند سکہ کمانے کے لیے 25 سال ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھ سکتا ہے، 5 سال تک MBBS کی پڑھائی پڑھ کے ساری زندگی کلینک میں بیٹھ کر کے وہ علاج کر سکتا ہے مریضوں کا، اور چند پیسہ کما کے کھا پی سکتا ہے۔ DM بننے کے لیے 35 سال تک اسٹڈی کرنا ہے، پھر اس کے بعد تیاری کر کے روزانہ 5 سے لے کے 10 گھنٹے تک ڈیوٹی کرنی ہے، تب چند سکے کمانا ہے۔ وہ جنت جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا آخرت، اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی سیریسنیس نہیں، کرنا پڑے گا۔ سرکار دو جہاں کا ہر کام جب حکمتوں سے بھرا ہے تو شادی بھی حکمتوں سے بھرا ہے، لیکن یہ کافر کنفیوژن میں ڈالتا ہے تو جواب اس کا آپ کیسے دیں گے؟ آپ توجہ سے تھوڑی بات میری تمہید مکمل ہو جائے، اس کے بعد میں لوٹ کے آتا ہوں شہداء کربلا کی زندگی سے مجھے پیغام کا ملتا ہے۔ ہم کبھی نہیں بولیں گے ہائے سکینہ، ہائے زینب، ہائے عباس، وہ صاحب ان ذلیلوں کا کام ہے جنہوں نے کربلا معلیٰ کی تاریخ کو ماتم میں بدل دیا، جنہوں نے کربلا معلیٰ کی تاریخ کو تازیہ کی طرف رخ موڑ دیا، جس نے کربلا معلیٰ کی تاریخ کو مرثیہ نوحہ کی طرف موڑ دیا۔ کربلا معلیٰ کی تاریخ نوحہ نہیں سکھاتی ہے، یہ تاریخ ماتم نہیں سکھاتی ہے، یہ تاریخ ہمیں عورتوں کی طرح چوڑی پہن کے رونا پیٹنا اور سر کے بال نوچنا نہیں سکھاتی ہے۔ جو کچھ بھی شکل لوگوں نے محرم کی بنا دیا ہے، چاہے لڑنا، چاہے پیک باندھنا، امام باڑہ بنانا، شیرنی کرنا، کیلا کا درخت لگانا اور فرضی کربلا بنانا، وہاں جا کے دفنا دینا، پھر 3 دن کے بعد پوجا کرنا، 40 دن کے بعد 40واں کرنا، یہ سب شیعوں کا فراڈ ہے، یہ سب رافضوں کا فراڈ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور یہ تازیہ کیا ہے؟ کہا تازیہ داری جو مروجہ تازیہ داری ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ہندوانہ کام ہے۔ یہ چونکہ ہند کافر میری نماز سے خوش نہیں ہوتا، میں روزہ رکھوں خوش نہیں ہوتا، جبکہ نفس کو پاک کرنے کے لیے سب سے بڑا مادھیم ہے روزہ، نفس کو کشلنے کا بڑا مادھیم ہے روزہ۔ بیوی باپانی دانا کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نفس کو دبانا، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہونا، مگر یہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ نماز پنجگانہ 5 ٹائم پڑھنا، یہ نماز پنجگانہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک بندہ اپنے خدا اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، پیشانی زمین پہ رگڑ دیتا ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، زمین تیری، آسمان تیرا، میں تیرا پیدا کیا ہوا، یہ میری پیشانی تیری پیدا کی ہوئی، میں اس پیشانی کو زمین پہ رگڑتا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ نماز ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر میں نماز پڑھوں یہ کافر بولتا ہے کہ مسجد یہ مال ہے کہ مسجد ہے، ایئرپورٹ ہے کہ مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن ہے کہ مسجد ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، نماز اچھی نہیں لگتی۔ جبکہ آج سے 50 سال پہلے وہ کہتے تھے نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھیا، اس سے مجھ کو برکت ملے گی، میری دکان میں ترقی ہوگی۔ ایک بابا تھا 50 سال پہلے آیا تھا، وہ 2 رکعت نماز پڑھا تھا، میں اس وقت 500 روپے کا کاروبار کرتا تھا، لیکن وہ بابا نماز پڑھ کے دعا کر کے کیا گیا، ابھی 5 ارب میں کھیل رہا ہوں، 500 کروڑ میں کھیل رہا ہوں۔ کل یہ شوق سے نماز پڑھواتے تھے، لیکن پتہ نہیں کس ڈائن اور قاتل کی نظر لگی ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں چند سالوں سے نماز پہ تبصرہ، روزے پہ تبصرہ، بلا وجہ تبصرہ۔ اتنا ضروری ہے نماز کے ریلوے
रेलवे डब्बे में बीच में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा जाए, इसका मतलब है कि नमाज पढ़ने में 5 घंटे लगते हैं, नमाज पढ़ने में 1 घंटा लगता है, नमाज पढ़ने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा रास्ता ब्लॉक हो गया। वो तो तबलीगी जमात वाला वो रास्ता ब्लॉक करके जमात शुरू कर देता है। हालांकि होना ये चाहिए था जब स्टेशन पे गाड़ी रुक जाए वह ट्रेन से नीचे उतर के नमाज पढ़े और बिल्कुल 4 रकअत वाली नमाज 2 रकअत पढ़े और फिर अलहम्द के बाद बड़ी सूरत में छोटी सूरत पढ़ ले, सुभान रब्बिल आला 3 बार नहीं 1 बार पढ़ ले, सुभान रब्बिल अज़ीम 3 बार नहीं 1 बार पढ़ ले। अत्तहियात के बाद दुआए दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ के सलाम पढ़ ले। मुख्तसर में 2 रकअत नमाज 2 मिनट में हो जाती है। ये 2 मिनट वाली नमाज इसको नहीं भाती। ये स्टेशन है कि मस्जिद है, ये मॉल है कि मस्जिद है, तमाशा खड़ा कर दिया इन लोगों ने। नमाज अच्छी नहीं लगती, रोजा अच्छा नहीं लगता, हज अच्छा नहीं लगता, ज़कात अच्छी नहीं लगती। आज हिंदुस्तान का करोड़ों आदमी ज़कात के सिस्टम से पाला जाता है, कल हजारों मदरसे ज़कात के सिस्टम से चल रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि 40वां हिस्सा निकाल, तो 40वां हिस्सा निकालते हैं। मेरा मदरसा चल रहा है, साहब लोग मस्जिद की तामीर के लिए पैसे दे रहे हैं, एक आदमी 1-1 करोड़ रुपए दे के मस्जिद की तामीर करवा रहा है। या चंदा या ज़कात या फित्रे का सिस्टम या ऑर्फनेज चलाने का शानदार जरिया है। आज गैर मुस्लिम भी यतीम खाना अनाथालय चलाते हैं, उसको मज़हब इस्लाम ने मसाज दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम है, मालदारों से लिया जाएगा, गरीबों पे खर्च किया जाएगा। ये अनाथालय देख देख कर, यतीम खाना देख देख कर, मेरा मदरसा देख देख कर उन्हें स्कूल चलाने का मजाज मिला, उन्हें स्कूल खोलने का मजाज मिला। तो जितने भी यतीम खाने आज गैर मुस्लिम चलाते हैं, उसकी शुरुआत मुसलमानों ने किया है, उसका आगाज मुसलमान ने किया है। तो ज़कात के सिस्टम को सराहना चाहिए नहीं। वो सराहता किसको है? ताज़िया को। वो सराहता किसको है? अखाड़ा को। वो सराहता किसको है? वो फर्जी करबला में दफन कर देने को। वो सराहता किसको है? वो साथ निशाना अज़ाले के घुमाना, वहां पानी डालना, मिन्नतें मांगना, उसको सराहता है। क्यों? इसलिए कि उनका भी काम वही है, अपने हाथ से कुछ बनाना, उसको घुमाना, वहां मिन्नतें मांगना, हाथ जोड़ के खड़ा होना, फिर जब तक चाह घुमाया, चंदा किया, शराब पिया, डीजे बजाया, नाचा गाया, और जब चाह उठा के पानी में फेंक दिया। अब चाहे उस पर चाहे कुत्ता पेशाब करे, कोई सूअर पेशाब करे, चाहे वो पखाना आदमी करे तालाब में, उठा के उसको फेंक दिया। तो अब उसकी तरह काम मेल का कौन सा काम पाएगा? ये भी घुमाता है, ये भी मिन्नतें मंगवाता है, ये भी चंदा करता है। ये जितने भी अखाड़ा बाज है, जितने भी ताज़ियादार है, उसमें से अक्सर लोग वो है चरसी, अफीम पीने वाला, शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, भांग खाने वाला। इसका हुसैन से क्या ताल्लुक है? इसका शरीयत मुस्तफा से क्या ताल्लुक है? इसका हुसैनियत से क्या ताल्लुक है? ये काम तो मुशरिकाना, ये काम तो हिंदुआना। मुसलमान हुसैन आज़म के नाम पे इन खुराफात को पांव के नीचे रौंद दे, क्योंकि हुसैन आज़म उस योद्धा का नाम है, उस बहादुर का नाम है, जिन्होंने यजीद की आमियत, यजीद के कैसर किसरा के चलन को तोड़ने के लिए कहा था। मुस्तफा का नवासा मौजूद है, उनके सामने अजान की सूरत बदलने नहीं दी जाएगी, उनके सामने नमाज का सिस्टम चरमराने नहीं दिया जाएगा। तेरे पास दौलत है, तेरे पास ताकत है, तेरे पास बहादुर है, तेरे पास शौर्य है, तू सारी ताकत का इस्तेमाल कर। मेरे पास ज़मीर है, मेरे पास दिल है, मेरे पास हाथ है, मेरे पास ईमान है, इसका सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तुझको चोरी पैर, नहीं सपोर्ट करेंगे तुझको। यजीद ने कहा था कैसे नहीं करेगा? जब बच्चा कटेगा हुसैन को झुकना पड़ेगा, जब पानी पे पहरा लगेगा हुसैन को झुकना पड़ेगा, जब 22,000 की फौज तलवार लहराएगी इसे झुकना पड़ेगा। नजरियाती जंग वहां हो रही है, यजीद बादशाह बना बैठा है, या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जब वह बना बादशाह, उनके दिमाग में किया कहता बहुत दिनों तक बादशाह कैसे बन के रहना है, कोई मेरा मद्दे मुकाबिल सर न उठाए। वह जानता था जिस दिन हुसैन ने अंगड़ाई ली उस दिन मेरा तख्ता पलट हो जाएगा, मेरी हुकूमत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले चाहता था कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे। इतने लाख लोग थे, उनकी बैत की फिक्र उसको नहीं थी, सबसे बड़ी फिक्र थी इमाम हुसैन को, ये मुझको सपोर्ट कर दे। ये बैत का मतलब सपोर्ट करना, समर्थन देना, मुझको वोट देना, मुझको बादशाह मान लेना, इसी का नाम था। और हुसैन आजम का क्या कहना था? हुसैन आजम अगर चाह लेते, हुसैन आजम मदीने का गवर्नर बन जाते, यजीद को सपोर्ट कर देते। हाँ तुझको मैंने मान लिया, तू मुसलमानों का बादशाह है, तू मुसलमानों का खलीफा है, या वक्ती तौर पर मान लेते तो इमाम हुसैन को यजीद मदीने का गवर्नर बना देता। वह 5 टाइम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ लेते, हर महीने 2 लाख
औलाद पे महाना वसूल देता, वो खा पी लेते और खाने पीने के बाद आराम से सोते, रात में नमाज तहज्जुद भी पढ़ते। और 55 साल की जो उम्र मौत के लिए अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया था, उस वक्त उससे एक मिनट आगे तो जाते नहीं, मर के बकरी शरीफ में माँ के पहलू में दफन हो जाते और दुनिया से चले जाते, आराम से खाते पीते चले जाते। एक रास्ता हुसैन के सामने ये था कि जब यजीद बादशाह बना और उन्होंने बैत लेने की पेशकश की तो हुसैन मेरी बैत करें, क्योंकि हुसैन जानते थे यजीद शराबी है, यजीद नमाज पढ़ने में सुस्ती करता है, यजीद शिकार में दिलचस्पी लेता है, यजीद इस खुलफाए राशिदीन की जो मसनद है उस मसनद को यहूद और नसारा के मसनद से मिलाने की कोशिश कर रहा है, यजीद आमिरियत को दखल दे रहा है, यजीद निज़ाम इलाही को बदलकर मनमाने ढंग से अपने नफ्स को दखल देना चाहता है। तो हुसैन आज़म की मौजूदगी में मुस्तफा जान रहमत का वह चिराग बुझ जाए। खुलफाए राशिदीन ने जिस चिराग की हिफाजत की है, सिद्दीक़ अकबर ने 2 साल तक खिलाफत पर मुतमक्किन रहकर उन्होंने मानीने ज़कात से जिहाद किया है, उन्होंने जैसे उसामा की तनफीज की है, उन्होंने झूठे नबूवत के दावेदारों को तय किया है, यानी 2 साल में इतने सारे फितनों को दफा किया, इस्लाम का चेहरा चमकाया, इस्लाम का दायरा वसी होता चला गया। उनके विसाल के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म मुसलमानों की राय से सिद्दीक़ अकबर उनको खलीफा मनोनीत किया। वो अपने 10 साल पीरियड में इस्लाम का जबरदस्त काम किया। ईरान जो मजूसियों का मुल्क था, फारूक आज़म के जमाने में उस मुल्क को जीता गया, उस मुल्क को फतह किया गया। रूम जो ईसाइयों का मुल्क था, फारूक आज़म के जमाने में उस पे हमला हुआ और ईसाई मगलूब हुए, इस्लाम गालिब आया, मुसलमानों ने वहां फतह का झंडा लहराया। यानी उस जमाने की 2 महाशक्तियां थी, एक महाशक्ति रोम है, एक महाशक्ति ईरान है। ईरान का बादशाह किसरा कहलाता था और रोम का बादशाह कैसर कहलाता था। यह दोनों की आधी दुनिया इधर आधी दुनिया उधर थी और बीच में अरब ममालिक था जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ था। उमर फारूक आज़म के जमाने में वही खजूर चोस के जीने वाला, वही 50 पैबंद कपड़े में लगा के पहनने वाला, मिट्टी की दीवार में रहने वाला, सर फैलाए तो सर छप्पर से लग जाए, इस कदर छोटे घर में रहने वाला। तो घर अगर बड़ा है, हिम्मत अगर पस्त है, उससे कोई काम न होगा। अगर घर बहुत बड़ा है और काम चोर है, आराम पसंद है, वो साहब बीमार है, वह काम चोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी बेटी की आबरू लूटेगी, डकैत का डेना तोड़ नहीं पाएगा। डकैतों का डेना तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, जालिमों को रोकने के लिए ताकत चाहिए। घर में डकैत आए, डकैत को मार के भगाने के लिए ताकत चाहिए, तीर चलाने के लिए ताकत चाहिए, गन चलाने के लिए ताकत चाहिए, धनुष उठाने के लिए ताकत चाहिए। और जो अपने जिस्म को ख्वाहिशात का गुलाम बनाकर इसे निकम्मा बना चुका हो, यह न बीवी की हिफाजत कर पाएगा, न बच्चों की हिफाजत कर पाएगा, न मुस्लिम समाज की हिफाजत कर पाएगा, न अपनी बहनों की हिफाजत कर पाएगा। इसलिए इस्लाम ताकत पे जोर देता है, रूहानी ताकत भी रहे, जिस्मानी ताकत भी रहे। सरकार दो जहां को रुकाना ने चैलेंज किया था, अगर आपको नबी में मान लूंगा, आपको आप नबी है, मुझको पछाड़ दें। रुकाना 50 आदमी को एक वक्त पछाड़ देता था, इतनी ताकत रखता था रुकाना, मगर हुजूर ने चैलेंज कबूल कर लिया। वो हुजूर जिसके चूल्हे में 2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सरकार दो जहां 2 महीने तक रोटी नहीं खाते थे, वही खजूर चूस के रह जाते थे। लेकिन सरकार दो जहां चूंकि इस्लाम की दलील है, उसका चैलेंज कबूल कर लिया। एक बार हाथ बढ़ाया और चारों शाने रुकाना को चित कर दिया, पटकनी दे दी। जब रुकाना ने देखा बड़ा बड़ा पहलवान मुझको पटक नहीं सकता है और ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने मुझको पटक दिया है, इसका मतलब है कि जरूर ये अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है। हुजूर की ताकत ने रुकाना को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो मुसलमान इस्लाम की तबलीग के लिए ताकत जरूरी है और ताकत के लिए गैर जरूरी सारी चीजों का छोड़ना जरूरी है। गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल करना, ये जरूरी, गैर जरूरी चीजों को छोड़ देना जरूरी है। बिला वजह मोबाइल से चिपके रहना ताकत कमजोर होती है, बिला वजह से 8 घंटे ज्यादा सोना उससे आदमी कमजोर होता है, बिला वजह 4 रोटी से ज्यादा खा करके लीवर को ऊंचा कर लेना आदमी को कमजोर बना देता है, बिला वजह फजूल बातें करना यह आदमी का सीना कमजोर कर देता है। जरूरी बात बोले वरना चुप रहे, चुप रहने से एनर्जी बचती है,
चुप रहने से दिमाग बचता है, चुप रहने से अक्ल पुख्ता होती है, खामोश रहने से सामने वाले पे हैबत होती है। जो हमेशा घर में बड़बड़ करता हो, गली में बड़बड़ करता हो, चाय की दुकान पे बड़बड़ करता हो, वह सिर्फ बोलता रहता है। बोलने से एनर्जी लॉस होती है, अक्ल खर्च होती है, अक्ल घर जाती है। जो हर वक्त बक करता हो, घर में, खेत में, तालाब में, मस्जिद में, जुमा के दिन, कब्रिस्तान में दफनाने के टाइम में सबसे ज्यादा बकू, सबसे ज्यादा बकवास करने वाला आज की तारीख में अगर कोई कौम है, वही जिसने खामोश रहने का पैगाम दुनिया को दिया था। अमेरिका के रेलवे स्टेशन पे 10,000 लोग रहते हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे 10 आदमी भी वहां नहीं है। उनके दफ्तर मार्केट में 1,00,000 लोग रहते हैं, मगर हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि एक आदमी वहां मौजूद नहीं है। वहां डिसिप्लिन है, वहां साइलेंस है, वहां खामोशी है। और जिस इस्लाम ने खामोशी पे जोर दिया है, सरकार ने फरमाया है जिसने खामोश रहा नजात पा गया। मन समता नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया। हुजूर ने कहा है तफक्कुर सात खैरुम मिन इबादत सनत, यानी थोड़ी देर खामोश रह के सोचना, गौर व फिक्र करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। खामोशी को मुस्तफा ने इबादत बना दिया है। मेरी माँ बहन बेटियां जब तक पके नहीं, उसको लगता है कि हमारी तौहीन है। जब तक हमारा जाहिल यूनिट अपने बड़ों के सामने बकवास न करे, बुरी बात न बोले, उसको लगता है कि हम किसी काम के नहीं है। चुप रहे, चुप रह के चले जाए, हमारा हम किस मसरफ के हैं। वह बोलना कमाल समझता है। मस्जिदों में बोलना, ईदगाह में बोलना, कब्रिस्तान में बोलना, शादी ब्याह की महफिल में बोलना, सिर्फ बोलना ही बोलना। इसी बोली ने औरतों को तलाक, औरतों की तलाक में इजाफा करवाया। इसी बोली ने मेरी जहालत को दूसरों के सामने जहालत का पर्दाफाश करवाया। खामोशी से हैबत बनी रहती है, खामोशी से ऐब छुपा रहता है, तो खामोशी से ताकत बनी रहती है। गैर जरूरी बातों से ताकत खर्च होती है। अगर कोई बोले भी तो सच बोले, बोले भी तो हक बोले, नहीं तो चुप रहे। झूठ बोलने से एनर्जी लॉस होती है, गीबत करने से एनर्जी लॉस होती है। वह चाहे 5 केजी रोटी क्यों न खा ले, ताकत बदन में न होगी। क्योंकि रूहानी ताकत होती है गुनाहों से बचने से, तो ताकत जरूरी है। हुजूर ने फरमाया है अल मुमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मुमिनिस सहीह, यानी ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। ताकतवर मोमिन रहेगा तब न पैदल हज करेगा, हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकी मिलेगी। ताकतवर रहेगा तब न ईशा के वजू से फजर पढ़ेगा। ताकतवर रहेगा तब न दूसरों का बोझ अपने सर से उठा के घर तक पहुंचा के करोड़ों नेकी कमाएगा। ताकतवर रहेगा तब न वह रात भर बीमार के सिरहाने हॉस्पिटल में खड़ा रह के उनके घर वालों की दिलजोई करेगा। ताकत रहेगा तब न या तो 10 कदम चलेगा, सीना पकड़ के बैठेगा, न डकैत को मार पाएगा, न दुश्मन को भगा पाएगा, न गांव पे हमला को रोक पाएगा। इसलिए आज हम उस पोजीशन में खड़ा है। हमारे बाल बच्चों ने गैरों की पैरवी करके रूहानी ताकत भी खत्म कर दी, जिस्मानी ताकत भी खत्म कर दी, सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो गई। एनर्जी जरूरी है। सरकारें तो जहां मदीने में है 2 महीने तक आग नहीं सुलगती है घर में, लेकिन एक बार मदीने में चिंगार आवाज आई रात में, सारे लोग बिस्तर से चौंक के खड़े हो गए, धीरे धीरे बाहर आने लगे। ये आवाज कहां से आई है, किधर से आई है, क्या करना चाहिए, कौन आगे जाएगा, जिधर से आवाज आई है कौन वहां जाएगा पता लगाने के लिए। हुजूर ने जिस दुश्मन के मदीना पे हमला की खबर दी थी, शायद वही दुश्मन हमला आवर तो नहीं हो गया, कौन इसका पता लगाएगा। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, धीरे धीरे सारे लोग बिस्तर से उठ के बाहर जमा हो रहे थे, सोच ही रहे थे क्या करें क्या नहीं करें। इतने में देखा एक घोड़े पर सवार होकर पैगंबर आजम उसी तरफ से जहां से आवाज आई थी सरकार तशरीफ ला रहे हैं। और तब देखा लोग यहाँ जमा है, हुजूर ने कहा जाओ जाओ अपने घर को लौट जाओ, आराम करो, सो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं वहां से आ रहा हूं जिधर से आवाज बुलंद हुई थी। क्या मतलब है कि जब मदीने पर खतरा मंडलाने लगा, चीख और चिंगार की आवाज आई, जाने की हिम्मत बड़े बड़े शोरमा को नहीं हो रही थी। वहां जाना, वहां की खबर लेके वापस आ जाना, जहां कोई नहीं गया वहां मुस्तफा जाने रहमत चले गए। तो मदीना के सबसे बड़े ताकतवर मुस्तफा, सबसे बड़े फाइटर मुस्तफा, इसलिए इस्लाम ने ताकत पे जोर दिया है। वह ताकत खत्म होती है ज्यादा घुमक्कड़ बनने से, वह ताकत खत्म होती है ज्यादा तीजा 40वां और साहब वलीमा में जाके खूब गर्दन तक गोश्त दबा लेने से। अपने घर में 1 पाव गोश्त लाया, 2 दिन खाया और वहां जाके 1 केजी गोश्त खा गया। अब भूल गए कि ये आदमी 200 आदमी को दावत दिया है, अब 50 केजी गोश्त बनाया है, तो पर आदमी कितना
पड़ेगा और हम ही 2 केजी गोश्त खा जाएंगे तो घर वाले का क्या हाल होगा। नहीं, बेरहमी से डुला देना है। तीजा का गोश्त, 40वां का गोश्त, बरसी का गोश्त, चाहे वह मरहूम कब्र में सांप काटे, बिच्छू काटे, वो कब्र में अजाब में जले, कुछ नहीं, उसके तीजा के नाम पे जो खाना बना है वह बिरयानी बड़ी अच्छी है, साग पूरी बड़ी अच्छी बनी है, मिठाई रहती, रसमलाई तो और दोबाला रंग बढ़ जाता, दावत का मजा आ जाता। चावल थोड़ा सा पतला रहता, बारीक 200 रुपए केजी वाला, तो बिरयानी का रंग और चढ़ गया होता। जिसके नाम पे बिरयानी दबाई जा रही है, उसको कब्र में सांप काट रहा है कि बिच्छू काट रहा है, सिर्फ खाना ही खाना है। तीजा का खाना, 40वां का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, मुहर्रम का खाना, खिचड़ा खाना, शादी का खाना, वलीमा का खाना, खतना का खाना, ऐसे नियाज का खाना, सिर्फ खाना ही खाना। और खाते खाते एक दिन खाना, 5 दिन लूज मोशन से दौड़ना और सीना पकड़ के बैठ जाना, और फिर उसके बाद जब हमला हो तो अब आवाज देना कि कोई आ जाए, अल्लाह का फरिश्ता मुझको बचाने के लिए। अब अल्लाह का फरिश्ता कहाँ है? गौसे आजम कहाँ है? नहीं बचा पा रहे हैं। गरीब नवाज कहाँ है? नहीं बचा पा रहे हैं। गौसे आजम तो बोले थे हम मदद करेंगे, कहाँ मदद हो रही है? ये काफी मुझको डराता है, धमकाता है, हमारी इबादत गाहों को तोड़ता है। कहाँ है गौसे आजम? कहाँ है गरीब नवाज? बिरयानी हम खाएं और मदद के लिए गौसे आजम आ जाए। गर्दन तक सारा खाना हम खाए, तीजा का, 4 का, 11वीं का, मुहर्रम का हलीम हम दबाएं, और मदद की जहां बात आए तो गरीब नवाज कब्र से उठ के आ जाए, तो हम खाने के लिए पैदा हुए और मदद के लिए गरीब नवाज आ जाए। ऐसा नहीं होता है। जो खाएगा उसी को लड़ना पड़ेगा, जो खाएगा उसी को आगे आना पड़ेगा, जो हलीम खाएगा उसी को मस्जिद बचानी होगी, जो खिचड़ा खाएगा उसी को मस्जिद बचाना होगा, जो वलीमा खाएगा उसी को अपना समाज बचाना होगा। खाने के लिए हम और मदद के लिए गौसे आजम आ जाए। गौसे आजम तो मदद करते ही हैं, मगर वो देखते हैं कि ये बंदा किस तरह अपने मजहब के लिए आगे बढ़ता है। तो मजहब की मदद के लिए ताकत चाहिए, ताकत के लिए गुनाह से तौबा करना जरूरी है, ताकत के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, ताकत के लिए वजीफा अल्लाहु अल्लाहु करना जरूरी है, ताकत के लिए कुरान करीम के कम से कम 200 आयतों को डेली पढ़ना जरूरी है, ताकत के लिए 1000 बार दुरूद पढ़ना जरूरी है, ताकत के लिए कम से कम रोजाना 100-200 आयतें कुरान पाक की तिलावत जरूरी है, 100 बार कलमा शरीफ का पढ़ना जरूरी है, ताकत के लिए निगाहों को नीचे रखना जरूरी है, ताकत के लिए खामोश रहने की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकत रहने के लिए गैर जरूरी खाना को छोड़ देना जरूरी है, ताकि पेट को आराम मिले, लीवर को आराम मिले, किडनी को आराम मिले, पेशाब पाखना के सिस्टम को आराम मिले, यानी लंग्स को आराम मिले और गला को आराम मिले। जरूरतन खाना है, अभी भूख रहे खाना है, भूख बाकी रहे खाना छोड़ देना है, तब अंदर में सारा दाना भीतर पलट बनेगा और एनर्जी पैदा होगी। नमाज में खड़ा होगा 2 घंटे तक, जहाद करने के लिए जाएगा तो पहले 50 को पहले मारेगा, उसके बाद शहादत का जाम पिएगा। ऐसा नहीं कि पहले घिघिया के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, हमको मत मारो मेरी बीवी घर में है, हमको मत मारो मेरा बेटा घर में है, हमको मत मारो, हम तुमको जो हमसे तुम जो बुलवाएगा भजन गाने के लिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम गा देंगे, हमको मत मारो। मुसलमान घिघियाता है, मुसलमान आगे पीछे करता नहीं। वह मुसलमान जो तहज्जुद की नमाज न छोड़ा था टीपू सुल्तान असर की नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला पाबंदी से जब दुश्मनों ने हमला किया वाटर गेट से उस पर कब्जा करने के लिए, उसे कहा गया था कि तो अंग्रेजों को मत दे दो, वो हर महीने तो 4 लाख रुपए देगा, आराम से खाएगा। वह बोलेगा उसके बाद क्या होगा, फिर तो मैं मर जाऊंगा, मरते तुम तक हिजला बन के अंग्रेजों के रहमो करम पे जिंदा रहो। वह 2-4 लाख रुपए देगा और मैं खाऊंगा आराम से और मैं बुज़दिल बन के रहूंगा। नहीं होगा ऐसा। जब मरना ही है तो शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ों के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने तलवार हाथ में उठाई, घोड़े पे चढ़ा और दीवानावार अंग्रेजों के बीच में घुसा, बहुत सौ को जहन्नम पहुंचाया। आखिर में नींद डूबने से पहले सारा जख्म सीने पर उठाकर इमाम हुसैन की औलाद में से वो टीपू सुल्तान सारा जख्म सीने पे लिया। उसके बाद अपनी जान आफरी को सुपुर्द कर दी। घिघिया के नहीं मरा, हाथ जोड़ के नहीं रहा, बल्कि बहादुर का जौहर दिखलाया, सैकड़ों को जहन्नम पहुंचाया और आखिर में बहादुर की मौत मरा, शेर की मौत मरा। 1 दिन की शेर की जिंदगी गीदड़ों के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। यह फार्मूला टीपू सुल्तान का नहीं है, यह फार्मूला मैदान करबला से निकला है। यही फार्मूला औलिया सालिहीन का है, यही फार्मूला हर मुसलमान का होना चाहिए। ताकत रहेगी तब न तलवार चलाएगा, तब
अपने दुश्मनों के बीच में घुसेगा, तौबा करके नमाज का आदी बन जा, आज से ही नमाज का आदी बन जा। जितनी गैर जरूरी चीजें हैं सबको पांव के नीचे रौंद दे, सिगरेट को रौंद दे, बीड़ी को रौंद दे, खैनी को रौंद दे, गुटखा को रौंद दे, फल फ्रूट खा, दूध पी, रोटी चावल खा, नमाज पढ़, नमाज से एनर्जी ले। अपने बच्चों को डीएम बना, अपने बच्चों को एसपी बना, अपने बच्चों को बड़ा ऑफिसर बना। ये ढोल और धूमधाम करने से काफी डरेगा क्या? ये हमारा लुच्चा लफंगा भाई बोलता है, हजरत यही तो एक बहाना है, हुसैन आजम के नाम पे हम ढोल बजाते हैं, काफी डर जाता है। मैंने कहा वही काम तुम करेगा जो काम मोदी जी ने किया था, यानी ताली बजा के कोरोना को भगाना। तो कोरोना जैसी बीमारी को ताली बजा के भगाया जा सकता है। अमेरिका का वैज्ञानिक हाथ जोड़ के खड़ा है, दवाई नहीं आई। चाइना जापान का वैज्ञानिक वो साहब परिश्रम नोच रहा है, इसकी दवाई क्या होगी? वैक्सीन के नाम पे पानी है, उसके बाद भी बार बार कोरोना का हमला आ रहा है। अभी भी 20,000 से ज्यादा केस रोजाना हिंदुस्तान में तेजी के साथ फैल रहे हैं। यहाँ तक कि सारे हुकूमत के अमले चौकस और चौकन्ना हो गए हैं, कहीं 4 लाख की तादाद न बदल जाए और दोबारा लॉकडाउन न करना पड़े। 3 साल हो गए, कोरोना की दवाई नहीं आई है। थाली बजा के कोरोना को भगा रहा है, जो अज़ाब इलाही है, जो खतरनाक बीमारी है, जो दुनिया के प्लेटफॉर्म में ताला लगवा दिया, जिसने हर आदमी के घर को जेल बना दिया, जिसने अमेरिका के जो चहल पहल वाले इलाके को सन्नाटे के रात में तब्दील कर दिया। और सारी दुनिया के वैज्ञानिक सीना पकड़ के बैठे हैं, दवाई नहीं आ रही है। दुनिया की सारी आर्मी कैसे इस कीड़ा से मुकाबला करे? ये अज़ाब इलाही है, इससे मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। तो थाली से पीट के कहीं कोरोना भागता है, उसी तरीके से ढोल को पीटने से कहीं ये लोग डरता है या डर के भाग जाएगा। या ढोल पीटने का जमाना नहीं रहा, ये साथ पिंजू बजाने का जमाना नहीं रहा, कि काफी डर जाएगा। उनके पास बम है, उनके पास F-47 है, उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास बम बनाने का दस्ता है, उनके पास ताकत है। ये ढोल बजा के क्या करेगा? तोड़ते सारे ढोल को। अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बना, अपने बच्चे को PM बना, अपने बच्चे को SP बना, अपने बच्चे को बैंक का मैनेजर बना, अपने बैंक को अलग अलग डिपार्ट का ऑफिसर बना। जब इल्म तेरे पास रहेगा, कलम तेरे पास रहेगा, ईमान तेरे पास रहेगा, तो तेरा मनसब, तेरा इल्म, तेरा कलम इन काफिरों को ताराशाही कर देगा। तू हर जगह गालिब आएगा, इस्लाम को भी गालिब करेगा, अपनी जिंदगी को भी खुशहाल करेगा। इल्म की ताकत जरूरी है, इल्म की ताकत, कलम की ताकत, ना कि वो ढोल और डुगडुगी बजाना पड़ेगा। डुगडुगी बजाने से कहीं सांप मरता है, डुगडुगी बजाने से कहीं ये शैतान सुनता है, नहीं सुनेगा। छोड़ दे डुगडुगी, छोड़ दे ये सारा तमाशा, छोड़ दे साहब ये आग में कूदना, छोड़ दे फर्जी करबला, फर्जी इमाम बारे का ढोंग। हुसैन आजम स्पिरिट के बादशाह का नाम है, हुसैन आजम मीनार नूर का नाम है, हुसैन आजम खजाने ताकत का नाम है। हुसैन आजम ने जिस तरह जिंदगी गुजारी, जिस तरह उन्होंने जो मैसेज हमको दिया है, उस मैसेज को आम करने की जरूरत है। हुसैन आजम ने वहां जाके रोया नहीं था, यजीद के सामने गिड़गिड़ाया नहीं था, हुसैन आजम ने वहां जाके भीख नहीं मांगी थी। और जिन लोगों ने रो रो करके कहानी शुरू कर दी, वह रोने वाला आदमी नहीं जानता है। हुसैन आजम साबरीन के इमाम का नाम है। मुसीबतें सारी की सारी जमा थी, मगर हुसैन की आंखों में आंसू नहीं था। उन्होंने गिड़गिड़ा के जान नहीं दिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए सारा कुंबा खुदा के नाम पे लूटा के एक मिसाल कायम कर दी है कि क़यामत तक जहां भी जालिमों के सामने कोई हक बोलेगा, और चाहे बेसहारगी के आलम में उस ताकतवर के सामने हक बोलेगा, तो मुंह उसका होगा। और यह हौसला इमाम हुसैन का अता किया हुआ। हुसैन आजम तो बहादुरों के सरदार का नाम है, हुसैन आजम तो बहादुरों के इमाम का नाम है। किसने तुमको बता दिया? वह नावल और अफसाने की कहानी की तरह हाय सकीना, हाय ज़ैनब, हाय सुगरा, हाय रुकैया, हाय उम्मे रबाब, हाय शहर बानो, ये गीदड़ों का काम है, या इन मातम करने वाले राफिजियों का काम है, जिन राफिजों ने काला कपड़ा पहन करके मुहर्रमुल हराम के इन दिनों का उन्होंने अपमान किया है। ये काला कपड़ा पहनने का दिन है, ये हरा कपड़ा पहनने का दिन है। आला हजरत ने लिखा है
کہ ان دنوں میں کالا کپڑا پہننا مکروہ ہے. ان چونکہ یہ روافض سے تشبیہ ہے. ان دنوں میں ہرا کپڑا پہننا مکروہ ہے چونکہ ہرا کپڑا پہننا ان دنوں میں بدعتیوں اور نیازوں کے طریقے سے مشابہت ہے. اس لیے ان دنوں میں سفید کپڑا پہنے بندہ نہ ہرا پہنے نہ کالا پہنے. چونکہ بدعتی نماز نہیں پڑھتا, صرف اکھاڑا ڈھوتا ہے. رافضی اہل صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اور اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچاتا ہے. یا رافضیوں کا بہت سا طبقہ یعنی 99 طبقہ اسلام سے خارج ہے. صحابہ کرام کو گالی دینے والا وہ بدتمیز کیا جانے کہ مولا علی نے جو خلافت کی لگام سنبھالی کب سنبھالی؟ عثمان غنی کی شہادت کے بعد. اس سے پہلے خطرناک مرحلے میں اسلام کا ممید و معاون ثابت ہوا ہے صدیق اکبر. جس وقت ان کا سینہ کشادہ ہوا تھا اس وقت سب کا سینہ تنگ لگ رہا تھا. جہاں صدیق کی نظر گئی تھی وہ عمر تک کی نظر نہیں گئی تھی. جب انہوں نے جہاد شروع کیا تھا جو مصطفیٰ کے زمانے میں اونٹ کی رسی بطور زکات دیتا تھا, اگر ابھی نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا, جہاد کروں گا یہاں تک کہ میں وہ زکات وصول کر لوں. صدیق اکبر نے زکات سے جہاد کیا, ورنہ پہلے بولا تھا میں زکات نہیں دوں گا, پھر تو 4 سال کے بعد فتنہ اٹھتا بولتا میں نماز نہیں پڑھوں گا, کوئی بولتا میں روزہ رکھوں گا مگر حج نہیں کروں گا. اسلام مذاق بن کے رہ جاتا. قربان صدیق اکبر کی جرأت, عزیمت اور ہمت پہ انہوں نے اس وقت میں عزیمت کا مظاہرہ کیا اور مالین زکات سے جہاد کیا کہ آج 1400 سال کے بعد زکات کا سسٹم, نماز کا سسٹم, روزے کا سسٹم جو اسلامی دنیا میں بحال ہے وہ احسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا, روم فتح ہوا, اسلام کا دائرہ وسیع ہوا. پھر ان کی شہادت کے بعد عثمان غنی اس گدی کی کمان سنبھالتے ہیں. 12 سال تک عثمان غنی نے قسطنطنیہ کی حدود سرحد پر اسلام کو پہنچا دیا. سمندر کے راستے سے مذہب اسلام کے دستوں کو, مجاہدین کو آگے بھیج کر اسلام کا دائرہ وسیع کیا. پھر اخیر میں مصلحت ایزدی کے تحت ان کی شہادت ہوئی. عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی نے خلافت کی بارگاہ سنبھالی. ان کے زمانے میں اب آپسی خانہ جنگی بے شمار رہی. مولا علی نے حکمت سے, مصلحت سے, چونکہ وہ حق پر تھے, ان کا جو مد مقابل تھا وہ حق پر نہیں, ان سے خطا اجتہادی ہوئی. مولا علی حق پر تھے اس زمانے میں, مگر ایسا کچھ ہوا کہ پورے 5 سال تک اسلام کے جو فتوحات کا سلسلہ تھا باہر پھیلنے کا, دنیا میں قبضہ, دنیا میں اسلام پھیلانے کا, حکومت کا دائرہ وسیع کرنے کا, وہ بالکل 5 سال تک رکا رہا. حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ بنے. یعنی بمبئی میں 12 دن تک جو میں تقریر کیا ہوں 12 سال تک لگاتار, میں 12 دن کی تقریر کو میں اس 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے نچوڑ کے میں رکھ رہا ہوں, چونکہ وہاں روزانہ ایک خلیفہ پہ خطاب کرنا ہوتا ہے. صدیق اکبر کی خلافت پہ ایک دن, فاروق اعظم کی خلافت پہ ایک دن, عثمان غنی کی خلافت و شہادت پہ ایک دن, مولا علی کی خلافت و شہادت پہ ایک دن, لگاتار 12 دن تک میں نے بمبئی کے جوگیشوری علاقے میں 12-13 سال تک خطاب, ایک ہی مجمع ہے, اس سے کئی گنا زیادہ لوگ روزانہ بیٹھتے تھے. روزانہ آج سے 20 سال پہلے 2-2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3-3 گھنٹے میں خطاب کرتا تھا اور لگاتار 12-13 سال تک خطاب کیا. ان لوگوں نے ایک ہی مجلس, ایک ہی محفل, ایک ہی محلہ میں نے خطاب کیا. میں نے پورے 12 تقریر یعنی 12 سال کی 25 تقریر کا نچوڑ میں 2 گھنٹے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. صدیق اکبر کی خلافت کے بعد فاروق اعظم آئے, ان کے زمانے میں یہ فتوحات کا سلسلہ دراز رہا, مگر مولا علی کے زمانے میں آپس میں خانہ جنگی ہوتی رہی. اس زمانے میں اسلام بچتا رہا مگر زیادہ فتوحات کا دور نہیں رہا. پھر مولا علی کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد حضرت امام حسن آئے. امام حسن نے 6 مہینے شاندار ڈھنگ سے خلافت راشدہ یعنی خلافت کا مطلب اس نہج پہ حکومت کرنا جو قرآن اور سنت کا سکھایا ہوا ہے. آج کل دنیا کا سارا بادشاہ جب وہ بیٹھتا ہے تو قانون کا نام رہتا ہے, اپنا چلاتا ہے, وہ اپنا ضابطہ چلاتا ہے, اپنے بھائی بھتیجوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسلامک جوڈیشری میں اور عام جوڈیشری میں یہی فرق ہے کہ اسلام کا سارا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. اس زمین پر قانون اللہ کا چلے گا. اللہ کا قانون جب چلے گا تو سارے بندوں کا بھلا ہوگا, لیکن بندے کا جب قانون چلے گا تو بھائی بھتیجا واد ہوتا ہے. اپنے ملک, اپنا محلہ, اپنا علاقہ, اپنی بیوی, اپنا جوان, اپنے بھائی کا فائدہ ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ریلوے منتری کبھی جعفر شریف بنا تھا تو سارا ریلوے کی ملائی کرناٹک لے گیا. ایک زمانے میں
में जब रेलवे मंत्रालय ममता जी ने संभाला तो रेलवे मंत्रालय की सारी मलाई टोरंटो से लेकर के और दूसरी ट्रेन तक वह बंगाल में लेके गई। किसी जमाने में नीतीश कुमार और लालू यादव और रामविलास पासवान या तीनों रेल मंत्री बिहार के बने, या तीनों अपने अपने क्षेत्र में रेलवे की मलाई लेकर के गए। यानी जो जिसके हाथ में मनसब आता है, इख्तिदार आता है, तो अपना चलाता है, अपना बेनिफिट। और जो मंत्री पूरे भारत का है वह सिर्फ अपने इलाके का काम करेगा तो दूसरा इलाका तरक्की से महरूम रह जाएगा। यही फर्क है इस्लामी लॉज में, इस्लामी कानून में और गैर इस्लामी कानून में। गैर इस्लामी कानून जब किसी बंदे के हाथ में हुकूमत आती है वो अपना चलाता है, वो अपना उसूल चलाता है, वो अपना कानून चलाता है। और जब इस्लामी उसूल, इस्लामिक गवर्नमेंट आती है तो अपना नहीं, अपनी तबीयत के खिलाफ अगर कुरान बोलता हो, अपना 1000 नुकसान उसमें पिन्हा हो, अपना नुकसान छेल कर कुरान हदीस की बात मानी जाएगी, उसका शासन चलेगा। यही फर्क है इस्लामिक गवर्नमेंट में और एंटी इस्लामिक गवर्नमेंट में। सरकारें दो जहां मदीना नाम की जो स्टेट की राजधानी थी उसके सरबराह थे सरकार, और तमाम काम कुरान के मुताबिक सारा काम होता था। सिद्दीक अकबर उसी पैटर्न पे अमल करते रहे, फारूक आजम उसी पैटर्न पे चलते रहे, उस्मान गनी उसी पैटर्न पे चलते रहे, मौला अली उसी पैटर्न पे चलते रहे। इसलिए इनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा बोला जाता है। उलाइका हुमुर राशिदून, ये लोग राह रास्त पर है, ये लोग राशिद है, ये लोग हिदायत याफ्ता है। उनका सारा तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को नाफिज करने वाला है। अब चूंकि बीच में हजरत इमाम हसन ने देखा अमीर मुआविया है, जब आ गए हैं मद्दे मुकाबिल, इमाम हसन के पास 40,000 से ज्यादा लोग थे, मगर इमाम हसन ने अपनी परवाह की कि 40,000 लोग जान हथेली पर लेकर मेरी तरफ से कुर्बान होने को तैयार है, मैं क्यों दबूं अमीर मुआविया से, मैं क्यों उनके सामने दब जाऊं? नहीं दबूंगा, लड़ूंगा, लड़ते लड़ते मैं हुकूमत करूंगा। नहीं, इमाम हसन सैयदों के सरदार का नाम था। हुजूर ने कहा था इब्नी हाज़ा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, यानी हसन ये मेरा बेटा सरदार है, इनके जरिए अल्लाह दो गिरोहों में सुलह पैदा करेगा। इमाम हसन को मालूम था कि नाना जान ने मेरे संबंध में ये कहा है, नाना जान ने मेरे ताल्लुक से ये कहा है। बाप यानी मौला अली के 5 साल पीरियड में इस्लाम ने आगे पहल नहीं की, दूसरे मुल्क पे कब्जा नहीं किया, बस आपसी खाना जंगी में रह गए। इमाम हसन ने अपने ताकत की मौजूदगी में अमीर मुआविया के सामने सुलह की पेशकश कर दी। मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं सुलह करना चाहता हूँ। अमीर मुआविया के पास जब आदमी पहुंचा, अमीर मुआविया ने एक सादा कागज इमाम हसन के सामने भेज दिया, भेजा कि आप जो जो शर्तें इसमें लिखना चाहते हैं आप लिख डालें, सारी शर्तें मुझको मंजूर है और इस शर्त पे मैं सुलह कर लूंगा। इमाम हसन ने 30 शर्तों के साथ वो खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दी और वहां से चल के मदीना आ गए। मदीना में आके नमाज पढ़ना, हज और ज़कात अदा करना, 55 साल की उम्र में 25 हज पैदल करना, रात रात भर नमाज पढ़ना, तिलावत करना और खल्क़े खुदा की खिदमत करना, दीन का काम करना, यही उन्होंने अपना मशगला बना लिया। उस जमाने में कितना बड़ा काम हुआ, आपस की खाना जंगी अब रुक गई। अमीर मुआविया अब बादशाह बन गए। 20 साल पहले वो गवर्नर थे, अब इमाम हसन के खिलाफत दे देने के बाद अब अगले 20 साल तक वह तनहा बादशाह रहे इस्लामी सल्तनत के। अब उसके जमाने में जो काम थोड़ा 5 साल से ब्लॉक हो चुका था, हजरत अमीर मुआविया ने, चूंकि मतबीर आदमी था, अमीर मुआविया ताकतवर और हैबत वाला शख्स था, उनसे बड़े बड़े नसरानी काम के और थर्राते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी कश्तियां समंदर की बनाई, उन कश्तियों में राशन और हथियार लोड किया और मुसलमान सिपाहियों को उसमें रखा। उसके बाद कुस्तुनतुनिया की तरफ भेजा, अफ्रीका की सरहदों की तरफ, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ बगावत, उस बगावत को फरोग करना और नए इलाके पे इस्लाम का, इस इस्लामी हुकूमत का दायरा वसी करना, ये सारा काम 20 साल के पीरियड में जबरदस्त ढंग से होता रहा। यानी अब इस 20 साल में कोई खाना जंगी न हुई, चूंकि इमाम हसन ने खिलाफत के हवाले कर दी कि बादशाह तुम ही रहना, तुम अपना काम करो, मैं अब मदीना जाता हूँ। जो इमाम हसन का मानने वाला था, जरा गौर से सुनिएगा, हम लोग भी कभी इस चक्कर में फंस जाते हैं जहां आदमी को न आगे जाने में बनता है न पीछे जाने में आता है। हमारे आगे पीछे जो लोग रहते हैं उन लोगों की वजह से हमारे आगे पीछे
ہمارے آگے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں وہ مجھے تباہ کر دیتے ہیں۔ امام حسن نبی کا پروردہ تھا، امام حسین نبی کی صحبت یافتہ تھا۔ سرکار دو جہاں کو امام حسن اور حسین نے بچپن میں دیکھا تھا، وہاں آنکھ کھولا تھا۔ ماں رات رات بھر مصلی پہ رہتی تھی، باپ رات رات بھر مصلی پہ رہتا تھا، اب باپ دن دن بھر جہاد کرتا تھا۔ اور پھر جس نانا کی گود میں پلے تھے حسنین، وہ نانا جان کی رات امام حسین نے دیکھی تھی، نانا جان کا دن امام حسین نے دیکھا تھا۔ اس لیے ان کی رگ رگ میں جو شریعت کی پاسداری بس گئی تھی، جہاں کہیں بھی دنیا اور آخرت آپس میں ٹکراتی، امام حسن امام حسین دونوں نواسے مصطفیٰ کے دنیا کو ٹھوکر مار دیتا، مصیبتوں کو، تکلیف کو، دنیاوی الجھنوں کو وہ گلے لگا لیتے تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ دنیا کے سامنے حسین اعظم کا پاؤں پھسل گیا ہو، شریعت کے سامنے حسین اعظم شریعت کو مضبوطی سے نہ لیا ہو۔ امام حسن نے جب خلافت دے دی میرے معاویہ کو، اس کے بعد لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ یا شیم ہے، یہ شیم ہے، یہ نا آر المسلمین ہے امام حسن۔ ہم لوگ ان کے نام پہ جان ہتھیلی پہ لے کے قربان ہونے کو تیار تھے، انہوں نے بزدلی دکھائی اور امیر معاویہ کو خلافت حوالے کر دی، انہوں نے بزدلی دکھلائی ہے۔ امام حسن کا جواب ہمارے لیے ماڈل ہے، آپ کے لیے ماڈل ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ماڈل ہے۔ ہم نے کہانی سنا ہے، ہم نے مرثیہ سنا ہے، ہم نے جھرنی سنی ہے، ہم نے اپنے رولانے والے مولویوں سے افسانہ اور ناول ہم نے سنا ہے، ہم نے نہیں سنا حسین جلیل ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین کیوں کہا گیا؟ وہ دین ہے، دین پناہ ہے۔ امام حسین اور امام حسن نے اسی کا بیٹا ہے جنہیں 3 دن تک فاقہ ہے، روزہ ہے، اور یہودی کے یہاں سے قرض لا کے آٹا تیار ہوا ہے، روٹی تیار ہوئی ہے۔ ایک دن یتیم بولا دو، ساری روٹی دے دی گئی، مسکین بولا دو، ساری روٹی دے دی گئی، قیدی بولا دو، مصطفیٰ کے گھر والے ساری روٹی دے دی گئی۔ 3 دن کا فاقہ ہے اور پانی پہ کہہ کے افطار جاری ہے۔ یہ صابرین کا گھرانہ ہے، یہ صبر و تحمل کرنے والے کا گھرانہ ہے۔ مولا علی کو جن کے سامنے دنیا سج سج کے آئی تھی اور بولی تھی، میں مولا علی نے کہا تھا کہ مجھ سے دنیا کہہ رہی ہے کہ قبول کر لیجئے، مولا علی نے کہا جاؤ، میں نے تجھ کو طلاق دیا، میں نے تجھ کو طلاق دیا۔ مولا علی یہودی کے کنواں سے پانی کھینچتے تھے اور یہودی کے کھیت میں پٹاتے تھے، اس سے جو مزدوری ملتی 2 درہم، اس سے اپنے بال بچوں کو پالتے تھے۔ کون تھے یہ؟ فاتح خیبر، یہ حیدر کرار، یا شیر خدا، جن کو سلام کرنے کے لیے میدان جنگ میں تلواروں کی نوک جھکی رہتی تھی، مگر انہوں نے حلال روزی کو اس کا سہارا لیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حرام کا 1 کروڑ روپیہ وہ آگ ہے، حلال کا 1 روپیہ بندہ کو اختیار کر لینا چاہیے۔ حلال کی جھوپڑی حرام کے محل سے بہتر ہے، حلال کی سائیکل حرام کی جاگوار کمپنی کی کار سے بہتر ہے۔ حرام کے پیسے سے کوئی مسجد بنائے گا، ثواب کو درکنار الٹی اس پر مقدمہ درج ہوگا کہ تم نے ناپاک اور حرام کا مال مسجد میں لگا کے تم نے ثواب کا حقدار کیسے بن بیٹھا، اور تم نے ایک ناپاک کمائی کو اللہ کے پاک گھر میں کیسے لگایا۔ تو بہت آسان ہے صاحب جن بریانی کھلا دینا، اور صاحب کیا ہے کہ وہ کھچڑا کا دیکھ 100 دیکھ امام حسین کے نام پہ، پتا چلا کہ سارا کام سٹا اور جوا کھیل کے پیسہ کمایا گیا ہے۔ اور چاٹنے والا بھی نہیں دیکھتا کہ حرام کا مال ہے، نہیں، حسین کا نام لیا بس چلے گئے چاٹنے کے لیے۔ دوسروں کا محل ہے، غور سے دیکھ لیا، جو محل حرام کا بنا ہو للچائی نگاہ سے دیکھے گا تو آنکھ بیمار ہو جائے گی، دل ناپاک ہو جائے گا۔ اگر شوق سے اس ظالم کے ساتھ چلے گا تو تیرا چلنا بھی ظلم ہوگا، ان کے مسکرانا بھی ظلم ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی تیرا ظلم ہوگا۔ جان بوجھ کر ظالموں کو سلام کرنا، ظالموں کے ساتھ چلنا، ظالموں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی محفل کا رنگ جمانا، ظالموں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا، یہ بھی ظلم ہے۔ حضور نے کہا تھا لا تصاحب الا مومنا، دوستی مت کرنا مگر مومن سے۔ لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نہیں کھائے مگر پرہیزگار، اپنا کھانا متقی کو کھلائے گا تو تیری روٹی کھا کے طاقت پا کے سجدہ کرے گا، اس کے سجدے میں تیری روٹی کی طاقت ہوگی۔ اگر تو کسی ڈکیت اور تھانے دار کو کھلائے گا تو تیرا کھانا کھا کے صبح سے شام تک گالی دے گا، تو تیرا کھانا اس کے گالی دینے میں ہیلپر ممی تو معاون ثابت ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ظلم اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ ظالموں سے مسکرا کے ملنا، ظالموں کے بیٹا بیٹی کی شادی میں جانا، ظالموں کے گھر میں بیٹھ کر کے حرام خوروں کے اس کے ٹائلز اور ماربل اور گرینائٹ
नाइट की तारीफ करना। तू ठेकेदार है दीन का, तू अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा कर, अल्लाह का नाम लेके दीन का काम कर, सारा काम तो अल्लाह करने वाला है, तू तो एक बहाना है। आइए मत बोलना कोई कि हमने ऐसा किया है, नहीं नहीं, काम तो सब अल्लाह करता है, तेरा एक बहाना होता है। क्यों उस हरामखोरों का सहारा लेना? अल्लाह पे भरोसा कर, बंद हो जाए मदरसा बंद हो जाए, मैं हरामखोरों का एक पैसा नहीं लूंगा और हरामखोरों के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा जिनका कारोबार शराब का हो, शराब पीने का या पिलाने का या शराब के बेचने का, जिनका कारोबार जुआ खेलने का हो, जुआ खेलने का, जुआ खेलवाने का, जुआ की महफिल सजाने का। जुआ खेलना हराम है, अल्लाह ने हराम का में बरकतें नहीं रखी है। शराब की एक एक बूंद अगर किसी के बदन में दाखिल हो जाए 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न कोई नमाज कबूल होगी, न कोई दुआ कबूल होगी, उसी हालत में मर गया तो जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। ये शराब यजीद ने पिया था और क़यामत तक जो शराब पिएगा वो यजीदी कहलाएगा। हुसैन आज़म ने उसी पे पहरा बिठाने, उसी को तोड़ने, उसी पे लगाम कसने, उसकी आनियत को मिट्टी के नीचे दफन करने, पाँव में रौंदने के लिए वह बिल्कुल मौत को आवाज दी थी, मौत को गले लगाया था, अपने बाल बच्चों की तबाही को गले लगाया था, अपने दुनिया के आराम को छोड़कर चेटियल मैदान की आग को उन्होंने गले लगाया था। ये उसके लिए हिम्मत चाहिए। इसीलिए तो जब वजन किया जाएगा हुसैन की अजीमत को, 50 करोड़ बहादुर उन इमाम हुसैन के पांव के नीचे की धूल उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच सकता। जिस अजीमत के मकाम पे इमाम हुसैन फाइज थे, जहां बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े रुस्तमों का सीना हिल जाता हो, वो काम करके हुसैन आज़म ने दिखलाया है। बस हुसैन की जिंदगी का दो पहलू याद रख, तीन पहलू याद रख लेना। एक पहलू मेरे इमाम ने हरामखोरी को जो उन्होंने दबाया है, भूख को गले लगाया है, हराम को उन्होंने त्याग दिया है। आज सच्चा हुसैनी वह होगा जो शराब की एक एक बूंद को दफन कर देगा। अगर वो अंदर चला गया तो जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाएगी, न कोई दुआ कबूल होगी, न उसकी कोई इबादत कबूल होगी। शराब पीना जरूरी है या पानी पीना जरूरी है? गंदों की सोहबत, गंदी गंदी आदत, गंदा गाना, गंदा अफसाना, गंदा माहौल इसलिए आदमी को शराब का आदी बना देता है। हम लोगों ने आज तक 55 से लेकर 52 ईयर्स तक शराब की एक बूंद को हमने तो कायदे से शराब को देखा तक नहीं है। अलबत्ता एयरपोर्ट पे जो शीशी नजर आती है वही शीशी नजर आती है, गलती से नजर पड़ गई, वरना बाकी शराब को डाल के जो गौर से देखता है शराब है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शराब के गिलास को मैं देखो, मैं जब सुनता हूं कि मुसलमान नौजवान तेजी से शराब की तरफ माइल हो रहे हैं तो ये अज़ाब इलाही को खुद दावत दे रहा है। ये तो एक वक्त ऐसा आएगा कि शराब पीते पीते काफिर से भजन गलवा लेगा, काफिर से अपनी बात मनवा लेगा, वो जो चाहेगा सो इससे बलवा लेगा। आज हमारी नस्लें बढ़ रही हैं उस तरफ जिस तरह इशारा हुजूर ने किया था कि बंदा आखिर जमाने में सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा, यानी अंदर से खोखला हो जाएगा, वजन नहीं रहेगा। जब वह आलिमों का एहतराम नहीं करेगा तो दीन की गुफ्तगू को हल्का समझेगा, तो फिर वह सुबह मोमिन रहेगा, काफिराना बोली बोलेगा, काफिराना बात करेगा, यानी बिल्कुल कोई वकार, कोई वजन नहीं रहेगा। जिस तरह टोकरी में बैगन कभी इधर कभी उधर, जिस तरह सियासी पार्टी वाला कभी इधर कभी उधर, जहां फायदा हुआ चला गया, उसी तरीके से आखिर जमाने में यह हाल हो जाएगा लोगों का। सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को ईमान नहीं सिखाया तो आजमगढ़ की बेटी जो मंदिर में एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली है, उसी तरह सबकी बेटी वैसे ही कर लेगी, क्योंकि उसकी बेटी को दीन किसी ने सिखाया नहीं कि मर जाए, कट जाए, दफन हो जाए, सारी जिंदगी कुंवारी रह जाए, मगर इस्लाम का सौदा ही करेंगे। अगर शादी कर भी लिया बदतमीज तो कितने दिन जिंदा रहेगा, कितने दिन जिंदा रहेगी? 100 साल एक सेकंड है कयामत के सामने, कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। आखिरत की बात हमेशा बच्चों की कुट्टी में पिलाना होगा, डेली बोलना होगा। बच्चा डीएम बने, एसपी बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, मगर आखिरत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा सुबह शाम बच्चों के सामने रहनी चाहिए कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है। दुनिया में तो बेशुमार लोग आए, अरबों कमाए, मर गए, उनका नाम और निशान मिट गया। दुनिया याद रखती है उसको जो हलाल खाता है, दुनिया याद रखती है उसको जो सुबह शाम इबादत करता है, दुनिया गरीब नवाज को याद रखती है, दुनिया अकबर को नहीं, बाबर को नहीं, दुनिया देहलवी के मजार पे जाती है, बाबर की कब्र पे नहीं, फकीरों की कब्र पे जाती है, उन बादशाहों की कब्र पे नहीं। बादशाहों ने ऐश किया था, कोई उनकी कब्र पे नहीं जाता, वहाँ मक्खियां भी मिलाती है, लेकिन जिसने सारी जिंदगी जौ की रोटी भी पेट भर के नहीं खाया, उनकी कब्र पे करोड़ों की भीड़ लग रही है, फातिहा हो रही है, चादरें चढ़ रही है, ताकि दुनिया जान ले जो
बाल बच्चा पेट कपड़ा का गुलाम हो, उनको सारी दुनिया भूल जाती है, और जो रब की इबादत जिंदगी का मकसद बना ले, जी भर के ना खाया हो, जी भर के ना पहना हो, दुनिया का सारा ऐश त्याग दिया हो, उनके विसाल के बाद करोड़ों दिल में उसकी अल्लाह मोहब्बत डाल देता है। जो लोग उनकी कब्रों पे जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं।